हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मैं सर पंकज कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया था। कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और उससे रिलेटेड जैसे हमने बताया था कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोलारिटी, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी वाला टर्म हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे कंटिन्यू करके आज हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी इज व्हाट इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब कहते हैं कि अगर हमने 1 लीटर सॉल्वेंट ले लिया, उस 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, what amount of solute can be dissolved in that particular solvent at a given temperature is known as what? Solubility of that solvent. So solubility will vary with the variation of the solvent. If you change the solvent, the solubility will also change. Together with this, that there are certain factors on which solubility depends upon. अगर हम बात करते हैं solubility मतलब क्या होता है कि जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट पर जाके डिजोल्व हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो क्या है, लाइक एक कॉन्सेप्ट हमेशा आप याद रखिए, लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या हुआ? लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड, सपोज वी आर हैविंग आयनिक कंपाउंड, then it will also get dissolved in the ionic solvent or the solvent which can produce ions. For example, अगर हम बात करते हैं, suppose we are having NaCl, नमक, this is an ionic compound, Na positive and Cl negative। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस अगर हम इनको H2O में डालते हैं, मतलब when we add salt to water, then salt is completely dissolved in water। मतलब salt क्या हो जाता है, पानी में हमारा completely dissolve हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन अगर इसी सॉल्ट को, अगर आप इसी सॉल्ट को NaCl को आप बेंजीन में लेके जाते हैं, if you are adding this salt in benzene, then you will notice that the salt will settle down at the bottom of the container which contains the benzene. Suppose you have taken benzene in this container and you added up NaCl, then the molecules of NaCl will settle down at the bottom without dissolving in it. That means what? From this we can say that this is an ionic. Water is also ionic. That is, this is a polar solvent. How can we say whether it is polar or non-polar? Just look for this. Here we are having the structure of water. By watching this structure, what can we say? That the hydrogen and oxygen, here two different elements are there. Hydrogen and oxygen, as we know that electronegativity of hydrogen is around 1 and that of this is 3.5. There is large difference of electronegativity in between hydrogen and oxygen, and due to difference in electronegativity, the electron cloud of hydrogen, that is bonded electron, will be shifted slightly towards oxygen atom, due to which it bears partial negative charge and hydrogen will bear partial positive charge, due to which NaCl also polar or ionic, so it is getting dissolved in it. But in case of benzene, it is what? Non-polar. That is, if you see the structure of benzene, it does not have the separation of charge. You cannot see
that there is any separation of charge, that means what? It is non-polar solvent. What is non-polar? non-polar solvent. अगर हम बात करते हैं दोस्ती भी क्या होती है, हम अपने बराबरी से के लोगों से ही दोस्ती कर सकते हैं. अगर मैं चाहूँ कि मैं अंबानी से दोस्ती कर लूँ तो वो इम्पॉसिबल है, मतलब अभी के लिए तो संभव नहीं है. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्ती जो होता है ना एक जैसे में होती है. स्टूडेंट का स्टूडेंट से दोस्ती होगा, टीचर का टीचर से दोस्ती होगा. तो यहाँ पर यही हम समझ पाए कि जो है ना सॉल्युबिलिटी किसी भी कंपाउंड का इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. पहली बात क्या लिखेंगे आप? द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट will depend upon the nature of solute and solvent. Hope you are understanding it. Now let's take another example. Suppose हम क्या कर रहे हैं, दूसरी एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमारा क्या है, वाटर में अगर आप ऑयल मिक्स कर रहे हैं, क्या है? ऑयल. अब वाटर हमारा एक तरह का क्या हो गया? पोलर हो गया. ऑयल हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया. तो ये क्या होता है? मिक्सअप नहीं होता. दीज टू विल नॉट मिक्सअप बिकॉज द नेचर ऑफ दीज टू लिक्विड्स आर डिफरेंट. बट इफ यू टेक अल्कोहल C2H5OH in water, then what will you see? These two are completely mixed with each other. Completely mixed with each other. Okay, so let's see. Okay, so as I told you, the solubility of solid depends upon the nature of the solvent, and we have taken the example of NaCl and H2O. It will dissolve, that is it is soluble because this is ionic, polar, and water is also a polar, that's why it is dissolving. Secondly, NaCl benzene, this is polar, it is benzene is non-polar, so it is insoluble. और आगे हम बात करते हैं जैसे नैफ्थलीन हो गया और बेंजीन हो गया, ये दोनों आपस में क्या है? देखो दोनों नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों क्या है? नॉन पोलर है. और जब दोनों नॉन पोलर होगा तो क्या हो जाएगा? ये सोल्यूबल हो जाएगा. फिर अगर हम आयनिक सॉलिड की सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, इन दैट केस द सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द हाइड्रेशन एनर्जी. दैट मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी मतलब जब कोई पर्टिकुलर आयंस हाइड्रेटेड होता है तो उस वक्त कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है. तो अगर हमारे पास लेटिस एनर्जी क्या होता है? कोई एक मोल आयन जैसे Na+Cl- का 1 मोल जब फॉर्म होता है तो हमारे पास क्या एनर्जी रिलीज होता है? लेटिस एनर्जी. मतलब एक मोल लेटिस के बनने में जो भी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज व्हाट नोन एज लेटिस एनर्जी. अगर लेटिस एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी से, इफ लेटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, व्हाट डज इट मीन? इट इज इनसोल्यूबल. अब यहाँ पे बात करते हैं अगर जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वी हैव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अब दोनों यहाँ पे क्या है? दोनों आयंस है. अब जब दोनों आयंस एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें वर्क करेगा और ये क्या होगा? एक लेटिस का फॉर्म करेंगे, मतलब एक मॉलिक्यूल बनाएंगे ये. और इसके दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज. अब देखते हैं यहाँ पे अगर ये जो है ना एनर्जी जो रिलीज होगी तो मतलब दोनों में क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब जैसे हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, सपोज हमने लेट्स से द सॉल्वेंट इज वाटर, इफ यू डिसॉल्व दिस इन वाटर देन व्हाट हैपेंस? द वाटर विल ट्राई टू क्लीव दिस बॉन्ड until or unless water is able to cleave this bond, this is not able to dissolve in that. यानी कि ये उस पर घुलेगा नहीं. अगर लेटिस एनर्जी हमारा क्या है? ज्यादा है देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये इनसोल्यूबल होगा. और अगर लेटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से, इसका मतलब क्या हो गया? ये सोल्यूबल हो जाएगा. अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आता है हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ. हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास Na पॉजिटिव आयंस है,
ठीक है। अब Na पॉजिटिव आयंस है तो हमारे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो क्या करेगा, इस आयंस को, दिस आयन इज बीइंग सराउंडेड बाय, दिस आयन इज बीइंग सराउंडेड बाय व्हाट, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स। और जब ये आयन वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएंगे तो क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। इसको और डिटेल में देखते हैं, आइए देखते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आप आइए समझते हैं हाइड्रेशन होता क्या है। जैसे आपने सॉल्ट को पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मतलब वाटर में ऐड किया, एज यू एडेड सॉल्ट इन अ वाटर, देन व्हाट हैपेंस, देखो सॉल्ट का जो आयन है ये Na आयंस है, ये Na आयंस के आसपास क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेगा। जैसे ही ये इसको अप्रोच करेगा इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, as it will approach the ions, then there is release of some amount of energy. Then what happens, here we have two types of bond, Na and Cl are there. So Na positive and Cl negative, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनकी वजह से जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आए होंगे तो क्या हुआ होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई होगी। अगर यहाँ से यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है उनको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, और यहाँ पर जो हाइड्रेशन पर होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई होती है उनको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे देखिए सोडियम आयन जो है हाइड्रेटेड हुआ, इस तरह से ये हाइड्रेटेड होता जाएगा, ये जितना बड़ा चलता जाएगा इसका जो साइज होगा, दिस इज व्हाट इज नोन एज हाइड्रेटेड स्फीयर। तो अब देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रेशन होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपको कि हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा। जैसे आपको दे रखा है Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb positive. Suppose you are given these ions and they have asked you that what is the order of hydration। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये चार्ज है, कैटायन है। अब कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। मतलब क्या होता है, इनका साइज पर भी डिपेंड करता है। अगर जितना स्मॉलर साइज होगा, स्मॉलर द साइज, हायर विल बी द हाइड्रेशन। दैट मीन्स इफ यू arrange the order of hydration energy, then it will follow, first we will get hydrated so much, followed by Na, then followed by K positive, and then followed by Rb positive. This is what about the hydration of a particular ions in water। जब कभी भी हम पानी में किसी आयंस को ऐड करते हैं तो वो इस तरह से हाइड्रेटेड हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पे जैसे हाइड्रेट होता है ना, तो हाइड्रेट होने पर क्या होता है, एनर्जी निकलती है। और जो एनर्जी निकलती है हमारा, अगर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं, तो अगर हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसको हम वो जो पर्टिकुलर चीज हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात है हमारे पास कि अगला जो है कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई कंपाउंड सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट की हम यहाँ पे हमने बात किया। मतलब आयंस वाला आयंस में डिजोल्व होगा और नन पोलर वाला नन पोलर में डिजोल्व होगा। ओके, तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो इस चैप्टर में हमारा सॉल्यूशन का जो चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली सॉल्युबिलिटी जो पढ़ते हैं इन फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो हेनरीज का लॉ है उसके फॉर्म में हम स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं इससे आगे जो है कि हम किस तरह से इसके आगे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विच इज एक्सप्लेन बाय द हेनरीज लॉ। अब हेनरी लॉ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। व्हाट डज इट मीन, सपोज वी हैव दिस कंटेनर, ये हमारा कंटेनर है, विच कंटेन लिक्विड एंड वी ट्राई टू डिजॉल्व सम गैस इन इट। तो क्या होगा, ऐसे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ऐसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है जो ओपन होता है। नो सिस्टम इज देयर इन द यूनिवर्स विच इज ओपन। क्योंकि अगर ये आप कहेंगे कि ये तो ओपन है, लेकिन नहीं, ये एटमॉस्फेयर से कंप्लीटली क्या है, क्लोज है। एटमॉस्फेयर इसको कंप्लीटली क्लोज करके रखा है और ये क्या करता है, सब अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट करता है। और ड्यू टू दिस प्रेशर
ड्यू टू दिस प्रेशर गैस डिजॉल्व इन इट। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या ये गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट हियर and due to atmospheric pressure some amount of gas is dissolved in liquid as well. So if you apply the pressure, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो अभी गैसेस स्टेट में थे वो क्या करेंगे, दे विल एंटर इनटू द लिक्विड फेज, वो लिक्विड में चलते जाएंगे। तो इनका जो रिलेशन दिया कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, एज यू इंक्रीज द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। So this is what and Henry's laws states. In another form we can say mole fraction of gas in the solution. अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन मतलब क्या था, क्वांटिटी हो गया, नथिंग एल्स बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनका, इस गैस का इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure, that means P किसके प्रेशर, ये जो मोल फ्रैक्शन हमारा है x means मोल फ्रैक्शन, the mole fraction will be directly proportional to the pressure, partial pressure, that means आप सपोज करो A गैस है B गैस है, सपोज वी हैव A गैस एंड B गैस, तो अब A का भी कुछ अपना प्रेशर होगा, B का भी अपना कुछ प्रेशर होगा। तो क्या कहते हैं कि जो A का अगर मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें इस स्टेट में लिक्विड में, दैट विल डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ इट, दैट इज मोल फ्रैक्शन will increase if you increase the pressure. So we can write it by removing the proportionality with the proportionality constant kh, where kh is what, Henry's constant, then we shall get P equal to kh into x. What shall we get, P equal to kh into x. Now you see, अब इसको हम देखते हैं क्या है, this is the form of y equal to mx प्लस c, यहाँ पे कुछ नहीं हमारे पास जीरो, तो C हमारे पास देखो। अब इनके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इफ वी ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस, देन वी शैल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। इन दिस एक्सिस y एक्सिस आई हैव टेकन प्रेशर एंड x एक्सिस द मोल फ्रैक्शन। As from this graph you can see, as the partial pressure increases, mole fraction also increases in this solution, in this phase, that means with increase in the pressure mole fraction also increases, because once the pressure is applied number of particle entering into the solution also increases. Hope you understand it, that is this is what called the Henry's law. अब देखिए हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन कई जगह होता है। अब जैसे गर्मियों में आप देखते हैं, जैसे अगर कहीं तालाब की ओर घूमने गए होंगे तो क्या होता है, वहाँ पे अगर मछलियाँ होती है, या फिर समुद्र में भी देखते हैं, या फिर कोई नदी में भी होती है, तो क्या होता है, गर्मी के टाइम में वो मछलियाँ बीच बीच में ऊपर आ जाती हैं। तो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो ऑक्सीजन की है वो डिक्रीज हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, अपर पार्ट में आके वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, और वो अपना जो है सांस लेने में उनको हेल्प मिलता है। तो ये हमारा हेनरीज लॉ है। तो हेनरीज लॉ में हमने बताया क्या ना कि P इक्वल टू के एच एक्स होता है, इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। उससे पहले इसका जो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ का कई तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर से, विद अ वेरी हाई प्रेशर CO2 गैस इज डिजॉल्व इन इट, तो दिस इज वन ऑफ द हेनरीज एप्लीकेशन। और कई बार क्या होता है, जो गोताखोर होते हैं वो जब जैसे जैसे अंदर की ओर चलते जाते हैं, तो कंसंट्रेशन, समुद्र में जैसे पानी के अंदर चलते जाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होते जाता है, मतलब प्रेशर, बट प्रेशर उसका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाता है। जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस समय क्या होता है, उसके बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब जो भी गैस है वहाँ पे, वो गैस क्या होता है उसके बॉडी में एंटर करते जाता है। और एज द diver is comes on the surface, then there is release of the gas from his body due to decrease in pressure। तो इस दौरान क्या होता है, थोड़ा सा पेन का एहसास होता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है जो हम हेनरीज लॉ का देखते हैं।
तो आइए क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सॉल्व एन क्वेश्चन. सो वी आर गिवन अ क्वेश्चन, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume N2 exert a partial pressure of 0.983 bar and we are given the Henry's constant is 76.48 kilobar. So we have what is the Henry's law? Henry law क्या कहता है? P इक्वल टू क्या है? KH इंटू हमारे पास क्या होता है? मोल फ्रैक्शन. P इक्वल टू KHX. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन. हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व, कितना मिलीमोल्स नाइट्रोजन का डिजॉल्व होगा. तो मैं क्या करूंगा, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे. सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? जस्ट सिंपली मैंने क्या किया, इसको चेंज किया, इसका हमें क्या करना है, एक्स निकालना है. तो एक्स निकालने के लिए क्या मैं क्या करूंगा, P N2 अपॉन KH. So P N2 partial pressure of nitrogen, we are given the partial pressure of nitrogen to be, what is the value of partial pressure? It is the value of partial pressure is given in the question, that is 0.987 bar, and we are given Henry's constant 76.48 kilobar. I have just converted into the form of bar. Now when I solve it, I got the this value. What is the 1.29 into 10 to the power minus 5 is the value. Now what is, now again we have to find the number of moles of nitrogen. तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा कितना 1000 लीटर ऑफ क्या है, मतलब 1 लीटर है. तो अब देखो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, वेट मतलब कितना हो जाएगा 1000 अपॉन कितना हो गया 18 विच इज इक्वल टू 55.5. इतना मोल हमारा क्या है, H2O. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये है. तो हम क्या लिखेंगे, देखो मोल फ्रैक्शन एज आई हैव कैलकुलेटेड 1.29 into 10 to the power minus 5. Just put this value in place of mole fraction 1.29 into 10 to the power minus 5 and we have add upon 55.5. This is done because the number of moles of water is much greater than number of moles of gas dissolved in it. That is why I have taken, if you add a small amount in a very large amount, then this will not change this value. अगर हम समुद्र से एक जग पानी निकाल लेते हैं तो क्या होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिमिलरली यहाँ पर उसमें अगर एक जग पानी भी डाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे को. इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन राइट इट एज n by 55.5. और यहाँ से क्या हो गया, ये दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन NN2. नाउ फ्रॉम हियर वी जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विच कम्स आउट टू बी 1.29. सिंपली आई हैव डन हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, and by using this cross multiplication we just find out the number of moles of nitrogen. This is in the mole and in the question we are asked to find it in millimole, so I need to convert it into millimoles. So by to convert it into millimoles we just have to multiply it by 1000 because it is in the mole, and if we want to convert it into millimole then we shall get 0.716 millimole. That means this is the amount which can be bubbled through nitrogen gas bubbled through water at 293 Kelvin. So this is what, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve. So this is the amount of nitrogen gas which is dissolved in the particular solvent. So I hope you understand this concept and you will solve the various questions related to this. And this is the today's video, and I have just tried to make you understand all the concept, and consequently I make another videos also. You just like them, and I hope you will like the video and appreciate me so that I can make better video for you, and I will try to teach you all the chapters, and so that your syllabus will get over very soon. Thank you.